Welcome to all in our lesson number 2. In previous class, we have studied about statement, truth value of the statement, open sentence, logical connectives and compound statement. Today's our learning goals are logical connectives such as conjunction, disjunction and negation. First of all, we see what is the conjunction. If two simple statement is obtained by using connectives and is called the conjunction. In other words, if P and Q are two statements, then P and Q is called the conjunction. Okay. The word such as but, yet, though, moreover can be used instead of and. So let's see truth table of conjunction. We have two statements P and Q. So obviously each statement having two values. So therefore there are four cases arise. So draw the table. First column P, make a first column P for P and second column for Q and third column for P and Q. Okay. So there are four possibilities, means true true, true false, false true, false false. Conjunction, remember conjunction is true if both the statement are true. Otherwise false. Means कंजंक्शन ट्रू कब रहेगा? जब दोनों भी स्टेटमेंट P एंड Q ट्रू रहेंगे तब. अदरवाइज जब एक भी स्टेटमेंट फॉल्स रहा रिमेनिंग केसेस में तो कंजंक्शन ऑलवेज फॉल्स रहेगा. सो आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल. राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज अ परफेक्ट स्क्वायर बट 11 इज अ प्राइम नंबर. इसमें क्या करना है आपको? एक कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है, उसमें आपको ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक विच ऑफ दिस कनेक्टिव्स. बट है यहाँ पे. हमने पहले यहाँ पे जो कंजंक्शन डिफाइन किया था उसमें बोला था कि दो कंपाउंड स्टेटमेंट अगर बट कनेक्टिव या वर्ड से भी जुड़े रहे तो वो हमारा कंजंक्शन स्टेटमेंट रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. So let P says that 9 is a perfect square and another statement denote Q. Q says that 11 is a prime number. Now it's symbolic form. अब symbolic form कैसे बनाना है आपको? कि P पहले स्टेटमेंट को आपने P डिनोट किया, इसको हम वर्बल फॉर्म बोलते हैं जो इन वर्ड्स रहता है. सिंबॉलिक फॉर्म में ऑब्वियसली सिंबल रहेंगे स्टेटमेंट विथ कनेक्टिव्स. तो पहला जो स्टेटमेंट है एज इट इज कुछ नहीं, आपको स्टेटमेंट जो हमने लेटर डिनोट किए थे वही पुट करना है इन वर्बल फॉर्म में. तो आवर सिंबॉलिक फॉर्म विल बी 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, उसको हमने P डिनोट किया था तो राइट P फर्स्ट. देन बट मीन्स क्या है? दिस कनेक्टिव्स. देन सेकंड जो स्टेटमेंट है उसको हमने Q डिनोट किया था. सो दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट. बट वी हैव टू फाइंड द ट्रूथ वैल्यू. सो राइट इक्विवेलेंट. अब देखो यहाँ पे टेल मी इज इट इज फॉल्स और ट्रू? इट इज ट्रू बिकॉज 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट? ट्रू. तो put here in place of P put T and as it is. Then read the another statement. 11 is a prime number. Again this is the statement and this is true. So write true here. अब देखो टेबल में हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि when conjunction is true when both the statement are true. अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, मिडल साइन कंजंक्शन मींस एंड है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा?
T, capital T. So in this way we have to find the truth value of the given conjunction statement. Okay, got it? Next, disjunction. Disjunction means, what is disjunction? Similarly, if two simple statement is obtained by using connective OR, ये है इसका सिंबल और का जो वी हम बोल सकते हैं उसको, is connect by using connectivity OR is called the disjunction. If P and Q are two statement है हमारे पास, तो जो P और Q, दिस इज कॉल्ड द डिसजंक्शन. ये जो स्टेट सिंबल है उसको हम बोलेंगे डिसजंक्शन. लेट्स सी ट्रूथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन. अगेन वी हैव द टू स्टेटमेंट P and Q. Both statement having individual truth value, means there are 4 cases are arise: true true, true false, false true, false false. Now disjunction is false when both the statement are false, otherwise true. अब disjunction ट्रूथ टेबल हमको कैसे रिमेम्बर रखना है? जब दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे तो disjunction are false. If any of the statement is true, then disjunction are true. तो इस तरीके से आपको ये रिमेम्बर करना है, लर्न भी नहीं करना है. लर्न किए तो कैसे भूल जाता है. एक हिंट, एक लॉजिक लगा के उसको रिमेम्बर, याद करने की कोशिश करो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ऑल फ्लावर्स आर रेड और ऑल काउज आर ब्लैक. अब गिवन अगेन कंपाउंड स्टेटमेंट है. वी हैव टू सॉल्व द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट. So solution, again let P says that all flowers are red. Then denote the Q letter to another statement which is all cows are black. Okay, then write its symbolic form. So symbolic form, therefore the symbolic form P or Q, it is equivalent to, but we have to find the truth value. Okay, अगर क्वेश्चन में पूछा रहेगा आपको कि राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, तो यहाँ तक ही आपको लिखना है. कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में ऐसे भी है. हाँ, ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना रहा तो आपको आंसर को, सोल्यूशन को और एक्सटेंड करना है. तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P, ऑल फ्लावर्स आर रेड. अब इट इज नॉट पॉसिबल. फ्लावर्स हैविंग डिफरेंट कलर, वी नो ऑल. सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली wrong. Wrong means false. So its truth value false, capital F. Connective or as it is, right? Or as it is. Then second another statement, Q statement क्या है? All cows are black. Again it is not possible. सभी cows black कलर के होते हैं क्या? नहीं होते हैं. कुछ रेड होते हैं, कुछ व्हाइट होते हैं, कुछ मिल्किश कलर के होते हैं. तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. तो राइट हियर false. अब see in truth table. अब here we already defined conjunction is a false when both statement, disjunction is false when both the statement are false. So it is clear that truth value of the given statement will be obviously false. इस तरीके से आपको गिवन जो स्टेटमेंट को पहले आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई करना है मतलब इसमें जो और है, जो कनेक्टिव्स जो वर्ड है वो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डिसजंक्शन ही है या कंजंक्शन है. क्योंकि एक्सरसाइज में या तो एग्जाम में आपको पहले ये जो दो सिंपल स्टेटमेंट जो कनेक्टिव से ज्वाइंट रहेंगे उससे आपको सिंबॉलिक फॉर्म
लिखना है तो पहले ये जो वर्ड जो है वो आपको रिमेम्बर रखना है। मीन्स जैसे डिसजंक्शन में क्या था, एंड के अलावा बट, एट, दो, मोरेवर, इसमें भी स्टेटमेंट रह सकता है। और यहाँ पे डिसजंक्शन में क्या है, और। ओके, तो इस तरीके से पहले आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म इसका लिखना है। सो दिस इज द disjunction. Now move to the negation. Our third connective is negation. Negation is quite simple. Negation means not. Symbol is this. This is the symbol of negation. Negation के लिए only one statement चाहिए. So let P एक any statement है तो negation क्या होगा, negation of P means सपोज P इज एनी स्टेटमेंट, सो इसका निगेशन क्या होगा, ऑलवेज फॉल्स होगा एंड डिनोटेड बाय निगेशन ऑफ P। जैसे P एक ट्रू स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन फॉल्स होगा, मतलब आपको अपोजिट लिखना है। लेट्स सी ट्रूथ टेबल ऑफ निगेशन। P, निगेशन ऑफ P, देयर आर टू केसेस अराइज, ट्रू और फॉल्स। ये दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो ट्रू रह सकता है, एक तो फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है। हाँ, दो जब थे तो हमने 4 पॉसिबिलिटी था, अब एक ही स्टेटमेंट है, एक तो ये ट्रू रह सकता है, एक तो ये फॉल्स। तो निगेशन क्या होगा इसका, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू। ओके, फॉर एग्जाम्पल राइट निगेशन ऑफ स्टेटमेंट यहां पे गिवन है, ही इज अ गुड बॉय। ये स्टेटमेंट गिवन है, उसका आपको निगेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे आप, क्या बताया था मैंने, लेट, पहले कभी भी जो वर्बल फॉर्म में गिवन जो सेंटेंस है उसको आप लेटर जो हमने डिनोट किए है PQR, suppose here only one statement, so denote P says that he is a good boy. Okay, so negation क्या होगा, negation of P। अब उसका अपोजिट नॉट लगा के आपको निगेटिव इसमें सेंटेंस बनाना है, तो क्या होगा, he is not a good boy. Again I am going to take another example. I am right here, so your idea will be clear. 2 plus 3 greater than 6। अब इसमें क्या करना है, ये सॉरी 4। ओके, सो फाइंड द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। मैथमेटिकल इक्वेशन है तो क्या आएगा इसका निगेशन, लेट P says that 2 plus 3 greater than 4, so negation of P, 2 plus 3 less than 4। इसको आपको लेस देन और नॉट इक्वल टू ऐसे ये करना है। ओके, तो ये हो गया निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड निगेशन। तो ये तीनों भी जो स्टेटमेंट है उसके ट्रूथ टेबल है वो आपको रिमेम्बर रखना है। और मैं एक बार रिपीट करती हूँ, जब कंजंक्शन में क्या रहेगा, जब दोनों भी वैल्यू ट्रू रहेंगी तो उसका ट्रूथ वैल्यू कंजंक्शन ट्रू रहेगा और अदरवाइज फॉल्स। डिसजंक्शन में दोनों भी फॉल्स रहेंगे स्टेटमेंट, तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स एंड अदरवाइज ट्रू। निगेशन तो बिल्कुल सिंपल ही है, निगेशन में कुछ नहीं, अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो उसको नॉट लगा के फॉल्स बनाओ। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दी concept whatever I have been taken here. So please जो भी आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करने के लिए वो ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ।
आपकी क्या, सॉल्व करने से जितना भी ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आइडियाज क्लियर हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।